Good morning, students. Welcome to the session of virtual classes. How are you? I hope you all are fit and fine and studying well. Students, today I am Renu Tyagi, your computer teacher, going to continue lesson number 5. Our today's topic is undo and repeat. Students, undo command is used to cancel the last action. What is the use of undo? This command is used to cancel or remove the last action. For example, suppose I have written this line, Ram is a good boy. ये मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को रिमूव करना चाहती हूँ या कैंसिल करना चाहती हूँ. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन द undo कमांड फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार. इज इट क्लियर? या ये मैंने कैप ड्रॉ की है, ठीक है। इस कैप को मैं रिमूव करना चाहती हूँ, ठीक है। नहीं चाहिए मुझे ये कैप, आई हैव टू रिमूव दिस. तो इसको रिमूव करने के लिए आई विल क्लिक ऑन द undo कमांड. I think action of the undo command is clear to everyone. Next command is here, repeat or redo. Repeat is used to cancel the effect of undo command. This command is used to cancel or remove the effect of undo command. For example, next is zoom in and zoom out. Students, zoom in is used to get a larger view of an image. When we want to see image in larger view, that time we use zoom in. Zoom in. It is used to get a larger view of an image. मीन्स जैसे आपको वीडियोज आती है, ठीक है, वो छोटी होती है, उसकी स्क्रीन छोटी होती है. जब आप उसको लार्ज करते हो ना देखने के लिए, दैट इज़ द लार्जर व्यू. फॉर दैट वर्क यू आर यूजिंग द जूम इन कमांड. ओके. नेक्स्ट इज जूम आउट. What is the use of zoom out? It is used to get a smaller view of an image. It is used to get a smaller view of an image. मीन्स जब हम जूम कर लेते हैं किसी इमेज को, फिर उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए या उसका साइज रिड्यूस करने के लिए हम जूम आउट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज सेविंग फाइल्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इन MS Paint. Format in
MS Paint. Students, by default files are saved in BMP format, but if we have to change this format, we can change by using JPEG format, GIF format, PNG format. Okay, to change the format we have to follow some steps. By default MS Paint files are saved in BMP format. This format can be changed by following these steps. First of all, we have to click on Save option from the File menu. You have to go to the File menu and there you have to click on Save tool or option. Then Save as dialog box appear as we click on the Save tool. Okay. List of formats will appear in Save as dialog box. From there we have to select. Now select desired file format and then release the mouse button. By following these steps, save as type can be changed. Students, now all these steps I am showing you in your book. See, first of all, undo and repeat. As I told you, undo is used to remove the last action. Okay, to do this work you have to click on this button. This is the undo button. ये इस टाइप का एक सिंबल होता है ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. This is used for undo. Okay, and next button is given there like this. This is for redo or repeat. Redo and repeat are same beta. Okay, next, to repeat the command, repeat command is used to cancel the effect of undo command. To do this work you have to click on this. Means undo से अगर हमने कुछ चीज़ रिमूव की है तो जब हम redo पर क्लिक करेंगे वो दोबारा से स्क्रीन पर आ जाएगी. ठीक है. Next was there zoom in and zoom out. We can use the zoom in and zoom out option to get a larger or smaller view of an image. सपोज करो ये एक इमेज है. ठीक है, ये पूरी एक इमेज है. आप इसको शॉर्ट व्यू में देख रहे हैं, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसको बड़ा करने के लिए आप जूम इन पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप जूम इन पर क्लिक करेंगे इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा. ठीक है, मीन्स बड़ा कि एक बार आपने क्लिक किया थोड़ा इंक्रीज होगा. ठीक है, सेकेंड टाइम व्हेन यू आर क्लिकिंग इट विल बी लार्जर. ओके, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा. एज मच यू आर रिक्वायर्ड यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड. अब इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन में लाने के लिए जिसमें पहले था यू कैन यूज़ द जूम आउट, कि जो हमने जूम इन कमांड यूज़ की थी उससे बाहर आ जाएं. फॉर दैट वी विल यूज़ द जूम आउट कमांड. सो जूम आउट इज़ यूज टू zoom out is used to get a smaller view of an image. See, all these effects you can see here. This is the actual effect, actual picture or image. ठीक है, when you use zoom in, size is larger here
Okay. After zoom in, when you are using the zoom out, then you are looking here, size is smaller in comparison to the actual size. एक्चुअल साइज से छोटा दिखाई देगा, एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देगा. ठीक है. नेक्स्ट इज हियर सेविंग फाइल्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इन MS Paint. बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स इन MS Paint आर सेव्ड इन BMP फॉर्मेट. अगर हम कोई भी फाइल टाइप चूज़ नहीं करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली BMP फॉर्मेट में सेव हो जाती है. बट वी कैन ऑल्सो सेव आवर फाइल इन अदर फॉर्मेट्स लाइक JPEG, GIF, PNG एट्सेट्रा. मीन्स BMP के अलावा भी हम दूसरे फॉर्मेट्स में अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं. अपनी फ़ाइल को दूसरे फॉर्मेट्स में सेव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. स्टेप क्या है कि हमें क्लिक ऑन सेव टूल. लेकिन ये सेव टूल आपको कहाँ से मिलेगा ये भी आपको याद रखना है. स्टूडेंट्स हियर मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से मिलेगा. ये फाइल मेन्यू है. दिस इज़ द फाइल मेन्यू. यू हैव टू क्लिक ओवर इट. जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको सेव टूल मिलेगा. ठीक है. वेट अ मिनट. फिर जैसे ही आपने सेव टूल पर क्लिक किया आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स मिलेगा. दिस इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स. ओके. इन दिस डायलॉग बॉक्स यू कैन सेलेक्ट द फाइल मीन्स सेव टाइप फ्रॉम हेयर. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो हेड. यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये लिस्ट आपके सामने आ जाती है. From here you can change any file type या saving mode means like PNG, GIF, JPEG can be selected from this list. किसी को भी एक को भी सिलेक्ट करके आप अपने माउस का बटन रिलीज कर देंगे मीन्स माउस को छोड़ देंगे. ओके. बाय दिस वे फाइल फॉर्मेट विल बी selected. Students, now we will revise these points. Freeform selection tool. What is the use of this tool? Students, this tool is used to select an irregular shaped area. Irregular shaped area is which area? Means you are looking tree here. This is the irregular shape. So this can be selected with the help of freeform selection. Means कभी ऐसे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे. आड़े टेढ़े सिलेक्शन के लिए हम freeform selection tool का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ एन इमेज. मीन्स कि अगर मुझे ये सन जो है इसको सिलेक्ट करना है तो ये इतना पोर्शन मैं सिलेक्ट कर पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. नेक्स्ट वन इज द इरेजर टूल. दिस इज यूज्ड टू इरेज एन एरिया ऑफ द इमेज. मीन्स किसी भी इमेज का कोई भी पार्ट रिमूव करने के लिए इरेजर इज यूज्ड. नेक्स्ट टूल इज देयर फिल विथ कलर टूल. दिस इज यूज्ड टू फिल द कलर इन एन एनक्लोज्ड एरिया. एनक्लोज्ड एरिया मीन्स दिस इज द एनक्लोज्ड एरिया. This circle is an enclosed area. Okay. If we have to fill color in it, we will use the fill with color tool. Next is pick color. It takes a color from the drawing that is already colored. Pick means लेना, चुनना. Suppose अगर मुझे ये कलर लेना है यहाँ से यहाँ पर फिल करने के लिए, for this pick color tool is used. Next tool is their magnifier tool. It is used to enlarge the selected area of the image. Means एरिया बड़ा करने के लिए हम मैग्नीफायर टूल का यूज़ करते हैं. पेंसिल टूल. इट इज़ यूज टू ड्रॉ अ लाइन. अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है फॉर दिस वी हैव टू यूज़ द पेंसिल टूल. नेक्स्ट टूल इज देयर ब्रशेस. इट ड्रॉज लाइन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड विड्थ. अलग अलग शेप और अलग अलग मोटाई की लाइनें ड्रॉ करने के लिए वी यूज़ ब्रश टूल. नेक्स्ट वन इज एयर ब्रश. इट प्लेसेस अ डॉटेड पैटर्न ऑन द ड्राइंग. डॉटेड मीन्स इस तरीके से डॉटेड पैटर्न बनाने के लिए यू यूज़ द एयर ब्रश. नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल. इट इज़ यूज टू टाइप द टेक्स्ट ऑन द ड्राइंग. अगर इसके साथ हम ट्री वर्ड लिखना चाहते हैं
For that we will use the text tool. Line tool, it draws a straight line. एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं line tool. Next is the curve tool. It draws a curved line. Curved means आड़ी टेढ़ी लाइन. अगर मुझे ऐसी लाइन कोई ड्रॉ करनी है या मुझे कोई ऐसा फिगर ड्रॉ करना है, for this क्या यूज करेंगे? कर्व टूल. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर टूल. रेक्टेंगल टूल, इट इज यूज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर शेप. रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है? जिसकी लंबाई एक जैसी होती है और चौड़ाई एक जैसी होती है. दिस इज द रेक्टेंगल image. Polygon, it allows you to draw a polygon shape. And oval tool is used to draw circle or oval. And next one is the rounded rectangle. It creates a rectangle with rounded corner. Means rectangle बनेगा लेकिन उसकी corner कैसे होंगे? Round shape में होंगे, like this. Okay, आप देख रहे हैं rounded shape हैं इसके corner, like this. Okay. So this is your chapter. Okay, now what you have to do? You have to do multiple choice questions in your notebook in neat and clean writing. I will send you this in PDF. Thank you so much. Have a nice day.